जय जिनेन्द्र सभी को. So today we are together for another session in the Solar Bhavna series of Jainin. Jainin, just to introduce any of the new members, Jainin is a forum started by some Jain professionals, started in Gurgaon almost more than 3 years back, and it has been continuing its series of knowledge sessions, knowledge on Jainism and its practical applications ever since, and a lot of sessions has been organized, and different series have also been conducted, like a series on karma was one of the first series that was conducted, followed by Bara Bhavna series, and now we are conducting Sola Bhavna series. In the same, it's a overall there are around more than 500 professionals with this platform, and in this series, Solar Bhavna series, we already conducted a couple of sessions earlier, and today we have the session on the Bhavna Vinay Sampannata. So on this today, the session is being conducted by Neeraj ji from UK. Neeraj ji has Jainism despite being in UK for over 2 decades. And he did his engineering from Rajasthan and then post-graduation from MP in India, and thereafter he's been in UK, and he has been working as an IT professional, first with certain big corporates in the UK, and now he's working as a freelancing consultant. He's also associated with Acharya Vidyasagar charitable Sangh in the UK, and is very active in UK, London's Jain community. So and also personally, it was my privilege to know Neeraj ji in one of my session on Karm Kaise Kare, and later I found out that he is also the husband of one of my childhood friends, school friends. So it's a privilege to be associated with him through Jainin, and he's become a very instrumental instrumental in the conducting of knowledge series of Jainin as well. So we are extremely privileged to have him with us, and especially today to invite him to share his views on this Bhavna of the Solar Karan Bhavna series. Over to you, Neeraj ji. Thank you, Swati ji. Can you see my screen? Is it visible? Yes. Oh. तो मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं. नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, मोक्षमोक्षस्य नेतारं, भेत्तारं कर्मभूभृतां, व्यापारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये. बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की जय. तो हम सोलह कर्म भावना के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और ये श्रृंखला हमारी शुरू हो चुकी है और आज तीसरा सत्र है. इससे पहले के जो 2 सत्र हुए हैं वो हमारे कमल अंकल ने लिए थे. पहले सत्र में अंकल ने दर्शन विशुद्धि भावना के ऊपर काफी विस्तृत चर्चा की थी, और दूसरे सेशन में कमल अंकल ने निर्मल सम्यक दर्शन के ऊपर काफी कुछ बताया था, और ये भी बताया था अंकल ने कि तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है वो 16 कर्ण भावना से ही होता है, और उसमें भी मुख्यतः दर्शन विशुद्धि भावना से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है. और जो बाकी की जो 15 भावनाएं हैं वो दर्शन विशुद्धि भावना में ही समाहित हैं, और ये 15 भावना एक तरह से सहायक हैं तीर्थंकर प्रकृति बंद करने में. तो आज हम दूसरी जो भावना है 16 करण की दूसरी भावना है विनय संपन्नता भावना, उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं. इस चर्चा में अगर मुझसे कुछ है या मैंने कुछ गलत तथ्य प्रस्तुत किया हो तो प्लीज आप उसको करेक्ट करें और मुझे क्षमा करें. तो आज हम जो चर्चा करेंगे उसमें
विनय क्या होती है पहले ये 1 मिनट में रिक्वेस्ट करूंगी कि म्यूट पे हो जाएं, मे बी कमल अंकल आप म्यूट पे हो जाएं, एंड एनीबडी एल्स हु इज ऑन अनम्यूट प्लीज गो ऑन म्यूट। या प्लीज कंटिन्यू भैया। हाँ, तो हम ये समझेंगे कि पहले विनय क्या है और विनय कितने प्रकार की है, क्योंकि ये सामान्य हिंदी शब्द है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम कुछ इस तरह की विनय करने लग जाएं कि जो कि सही ना हो। फिर हम ये भी समझेंगे कि लौकिक विनय क्या होती है, जैन धर्म में विनय का कहाँ कहाँ पर उपयोग किया हुआ है वो भी समझना जरूरी है। फिर हम चर्चा करेंगे पारलौकिक विनय के ऊपर, और जो हम विनय संपन्नता भावना पढ़ रहे हैं उसका क्या प्रभाव होता है वो हम समझेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि विनय का, जब विनय शब्द को उपयोग करते हैं तो उसका किस कॉन्टेक्स्ट में है वो समझ करके हम देखेंगे कि इसका हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर क्या प्रभाव होता है। क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही है या हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहा है जैनिन का, कि हम जो भी अध्ययन करें जैन धर्म के सिद्धांतों का। विनय क्या है, विनय के कितने प्रकार हैं, लौकिक विनय किसे कहते हैं, सुन ले नंदन। तो ये हमें समझना जरूरी है कि हम इनको पढ़ तो लें, पर पढ़ करके इनसे हमारे जो व्यक्तिगत जीवन या हमारी प्रोफेशनल लाइफ है उस पर हम उनका कैसे उपयोग करें और उनका इम्पैक्ट क्या होता है। तो हमें धार्मिक रूप में भी समझना है और हमारे व्यवहारिक रूप में भी समझना है। जब हम व्यक्ति और व्यवहार की बात करते हैं तो हमें दोनों चीज समझ करके आगे बढ़ना है। और हम अनेकांतवाद की बात करते हैं तो हमें सारे तथ्य और सब तरह के जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो हमें समझने हैं। तो हम कोशिश करेंगे आज थोड़ा समझने की। हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जो विनय संपन्नता है इसका सामान्य अर्थ क्या है, क्योंकि यहाँ दो शब्द हैं, विनय और संपन्नता। तो जो विनय शब्द है साधारण हिंदी शब्द है, इसके जो पर्यायवाची हैं या इसका अर्थ है वो हम दूसरी भाषाओं दूसरे शब्दों से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे नम्रता, विनम्रता, सादगी, शिष्टता, सौम्यता, भद्रता, शील, ये सब उसके पर्यायवाची हैं। और इंग्लिश में अगर हम कहें तो इसका ट्रांसलेशन या मीनिंग है इंग्लिश में ह्यूमिलिटी, मोडेस्टी, डिसेंसी, सिविलिटी। और सिंपल परिभाषा अगर हम देखें विनय शब्द की तो वो है पूज्य पुरुषों के प्रति आदर का भाव, उनकी सेवा शुश्रूषा और सत्कार का भाव। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे आगे। और जो संपन्नता शब्द है, ये संपन्नता शब्द हमने कई बार सुना है, हम उपयोग भी करते हैं अपनी साधारण भाषा में, बोलचाल की भाषा में। इसका अर्थ है या पर्यायवाची शब्द जो इसके हैं वो है समृद्धि, बहुलता, धन धान्य पूर्णता, वैभव और इंग्लिश में प्रॉस्पेरिटी। तो विनय संपन्नता दोनों शब्द को जोड़ दिया जाए तो इसका सामान्य अर्थ हुआ विनय से संपन्न या विनम्रता की बहुलता। तो हमें हमारे अंदर किस तरह की विनम्रता आनी चाहिए, उसकी बहुलता कैसे आनी चाहिए वो हम समझेंगे। तो पहले विनय के प्रकार पढ़ते हैं कि कितने तरीके की विनय होती है। तो उससे ये होगा कि जैसा हम समझते हैं अपनी सामान्य जीवन में भी कि अगर हम किसी अच्छी चीज को समझना चाहें तो हम उसके अगेंस्ट में जो बुरी चीज होती है वो भी समझनी पड़ती है, ताकि हम बुरी चीज ना करें और अच्छी चीज करें। तो दोनों चीजें हमें समझनी होती है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है। तो विनय को दो तरह से विनय अपन समझ सकते हैं, एक तो है लौकिक विनय और दूसरी पारलौकिक विनय। नाम से ही विदित हो रहा है, लौकिक विनय जो इस संसार से संबंधित है, इस संसार को बढ़ाने वाली है, इस संसार से हमारा पार नहीं लगाएगी, पर इसको समझना जरूरी है क्योंकि हम सांसारिक जीव हैं और हम उस लौकिक विनय भी करते हैं। और जो पारलौकिक विनय है यानी कि इस लोक से पार लगाने वाली विनय, यानी कि मोक्ष मार्ग को सुदृढ़ करने वाली विनय, वो भी हम समझेंगे। तो लौकिक विनय फिर से 4 ग्रुप में डिवाइड की हुई है। लोकानुवृत्ति विनय, अर्थ नैमित्तिक विनय, विषय नैमित्तिक विनय, भय विषय विनय। और जो पारलौकिक विनय है वो 5 तरह की बताई गई है, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, विनय और उपचार विनय। इनको हम समझेंगे थोड़ा डिटेल में। तो पहले हम समझते हैं लोकानुवृत्ति लौकिक विनय ये क्या होती है। ये हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से और हम रोज मर्रा की जिंदगी में इसको करते भी हैं और ये करनी भी चाहिए। पर करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इसको अच्छे मन से करें, ऐसा ना हो कि मन में कुछ और भाव है और हम कुछ और कर रहे हैं। तो ये हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये होती क्या है, जैसे कि हम अनुकूल वचन बोलते हैं जब किसी से मिलते हैं, मधुर वचन बोलते हैं ताकि किसी को बुरा ना लगे, और जैसी भी हमारी सामर्थ्य और स्थिति होती है उसके अनुरूप लोक व्यवहार निभाते हैं।
कोई अगर हमारे घर आया है या किसी का हमें सत्कार करना, आदर करना, तो अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और उन्हें अपना आसन भी हम प्रस्तुत करते हैं और हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन करते हैं, और वक्त आने पर देश काल के अनुरूप धन संपत्ति आदि का दान भी करते हैं। तो ये लोकानुवृत्ति विनय है, ये करनी चाहिए और करते भी हैं हम, और अच्छे मन से करना चाहिए। और बाकी की जो 3 लौकिक विनय है वो भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि वो भी समझना जरूरी, वो भी होती है हमसे, पर हमें नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम उसको समझते हैं। तो दूसरी विनय जो है लौकिक विनय, वो अर्थ नैमित्तिक विनय। इसकी परिभाषा सिंपल है, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए स्वार्थवत वश हाथ जोड़ना। तो इसमें 3 शब्द इसमें आ गए, इसे प्रयोजन आ गया, सिद्धि आ गई और स्वार्थ आ गया। तो इसका सिंपल सा उदाहरण हम ले सकते हैं, उससे हम आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कि कोई बिजनेसमैन होता है या कोई दुकानदार होता है, तो वो क्या, उसके पास जब कोई कस्टमर आता है तो अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए या चलाने के लिए उस ग्राहक की या उस कस्टमर की बहुत विनय करता है। चाहे ग्राहक कितना ही नाराज हो, चाहे किसी तरह से भी बिहेवियर कर रहा हो या कुछ भी उसका स्वभाव हो, लेकिन दुकानदार नाराज नहीं होगा, उसके सामने विनय ही करेगा, अच्छे से ही बात करेगा और अपने बिजनेस के हिसाब से, क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ छुपा हुआ है, उसको अपना बिजनेस को बढ़ाने का प्रयोजन है, उसको उसमें रखना है उसको। तो इस तरह की विनय करना अर्थनैमित्तिक विनय है। इसमें जरूरी नहीं है कि आपका मन शांत हो या आप अच्छा मन हो, पर यहाँ पर स्वार्थ छुपा हुआ है। उसी तरह से अगर अपन दूसरी लौकिक विनय देखें, विषय नैमित्तिक विनय, पहले परिभाषा देखते हैं। भौतिक सुख सुविधा के संसाधनों की पूर्ति और इंद्रिय सुखों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली विनय। इसका बहुत साधारण सा उदाहरण अपन ले सकते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसको अगर कुछ खाने पीने की चीज चाहिए होती है या कोई खिलौने चाहिए होते हैं जिससे कि उसके इंद्रियों को सुख मिलता है, तो वो क्या करता है, वो अपने पेरेंट्स से या बड़ों से या जो भी उसकी पूर्ति करने वाले हैं उनसे विनय करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है। और कई बार हम एडल्ट्स या वयस्क लोग हैं, वो भी इस तरह की विनय करते हैं। तो यह है विषय नैमित्तिक विनय। और तीसरी है, चौथी कहेंगे, भय विषयक विनय। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, भय के वशीभूत होकर या दबाव में आकर झुकना और हाथ जोड़ना। इसका साधारण सा उदाहरण अपन ले सकते हैं कि ऑफिसेज में या जॉब में जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वो अपने सुपीरियर्स की या अपने बॉस की हमेशा आदर करते हैं, उनकी विनय करते हैं, चाहे उनके मन में उनके लिए वास्तविकता में कोई आदत हो, लेकिन फिर भी करनी पड़ती है, क्योंकि और कई बार हमने देखा है कि कई लोग डर की वजह से देवी देवताओं की विनय करते हैं। उनको ये डर रहता है कि हमने देवी देवताओं की पूजा नहीं की तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा या हमारा कुछ बुरा हो जाएगा, तो उनके मन में एक डर रहता है और उस डर की वजह से वो विनय करते हैं। तो ये हुई भय विषय विनय। तो अब यहाँ साधारण सी बात समझने की है कि जो लौकिक विनय के हमने 4 प्रकार देखे, उसमें से ये तीनों प्रकार का विनय करने का कोई मीनिंग नहीं है। इससे पाप कर्मों का ही बंद होगा और ये करनी नहीं चाहिए। परिस्थिति कई बार ऐसी बन जाती है कि करनी पड़ती है, पर निश्चय नए से हम देखें तो ये नहीं करनी चाहिए। व्यवहार नए में कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम क्यों करें इसको और किस तरीके से करें। पर सिंपल सा आंसर ये कि ये तीनों विनय नहीं करनी चाहिए। लोकानुवृत्ति विनय करना ठीक है, अच्छे मन से करें। तो हम पारलौकिक विनय को समझने से पहले ये समझते हैं कि जैन धर्म में विनय शब्द का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया गया है और कौन सा वाली विनय सही है, कौन सी नहीं। तो हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि जो मिथ्यात्व है वो 2 तरह का होता है, अग्रहित और ग्रहित। ग्रहित मतलब हमें जो मिल जाता है बाद में, और उसको भी 5 प्रकार से बताया गया है। वो है एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। तो इसमें हमने देखा कि इसमें शब्द आया विनय। जो विनय मिथ्यात्व है वो ग्रहित मिथ्यात्व है और वो एक तरह से पाप है, नहीं करना चाहिए। क्या है विनय मिथ्यात्व? कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु, जो कि राग, द्वेष, हिंसा, परिग्रह में लिप्त हैं, उनकी विनय करना, या सभी देवों को, शास्त्र गुरुओं को एक समान मान लेना कि ठीक है ये हमारे भी देव हैं, दूसरों के देव हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा मान लेना। तो ये विनय मिथ्यात्व है, ये नहीं करना चाहिए। ग्रहित मिथ्यात्व है, पाप है। तो देखो विनय शब्द यहाँ पर भी उपयोग हुआ है, लेकिन समझने वाली बात है कि कौन सा विनय है ये विनय मिथ्या। जब खाली विनय शब्द उपयोग करते हैं तो उसमें विनय मिथ्यात्व को इंक्लूड नहीं करते हैं।
तो ये विनय विख्यात नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी जगह हमने देखा था विनय शब्द का उपयोग हुआ था तप में। तो हमने पढ़ा था कि तप भी 12 तप होते हैं, जो कि 6 तप तो बहिरंग हैं और 6 अंतरंग तप हैं। और उन अंतरंग तप में एक तप है विनय। और विनय तप क्या होता है? तप करने से कर्मों की निद्रा होती। तो एक तरह से ये धर्म हुआ और ये हमें करना चाहिए और हमारे मुनि करते हैं। तो इसकी सिंपल परिभाषा देखते हैं हम। मोक्ष के साधन भूत सम्यक ज्ञान आदि में तथा उनके साधक गुरु आदि में योग्य रीति से सत्कार आदि करना विनय तप है। हम भी करते हैं मुनियों के लिए, सबके लिए, या जो भी तपस्वी जन है उनकी विनय करते हैं। तो ये हुआ धर्म। तो देखो यहाँ पर विनय शब्द का उपयोग हुआ, लेकिन ये धर्म है, ये करना चाहिए। और तीसरा है जो हम चर्चा कर रहे हैं, विनय संपन्नता। विनय संपन्नता पुण्य है। यहाँ इसको पुण्य की कैटेगरी में क्यों रखा है? क्योंकि इससे तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का बंद हो रहा है। तो यहाँ पर कर्म का बंद हो रहा है, निर्जरा नहीं हो रही है कर्म का। लेकिन कौन से कर्म का? ऐसे कर्म का बंद है, ऐसे नाम कर्म का बंद है जिसको मिलना बहुत ही दूर। हमारे पंचम काल में हमारे लिए तो संभव ही नहीं है कि हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए। पर इसका अर्थ ये नहीं, जैसे हमने पिछले 2 सेशन में बताया था कमल अंकल ने और योग्य अंकल ने, कि इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसकी कोशिश ही ना करें, करना चाहिए। तो विनय संपन्नता पुण्य है और ये करना चाहिए। और इसकी परिभाषा है पारलौकिक विनय की बहुलता। तो अब यहाँ पर बात आई पारलौकिक विनय की, तो हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो पारलौकिक विनय क्या है? तो हमने साधारण शब्द से समझा कि जो इस लोक से हमारा पार लगा दे। इस लोक से पार लगाने से अर्थ क्या है? कि मोक्ष मार्ग के हम मार्ग पे अग्रसर हो जाएं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो क्या क्या इसमें अपन समझ सकते हैं? जैसे बुरे कर्मों से दूर रहना, दुर्गुणों से बचना, कषायों का समन करना। हम जानते हैं कि 4 कषाय होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो उन चारों कषायों का समन कर लेना, वो पारलौकिक विनय हुई। इंद्रिय विजय करना, जो हमारी 5 इंद्रिय हैं, स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री। इन 5 इंद्रियों पर विजय पाना, अर्थात इन इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना है, हमें इनको अपने वश में करना है और इन पे विजय पानी। ये हुई पारलौकिक विनय। और जिनवाणी के अनुसार आचरण करना। तो चाहे गृहस्थ हो, चाहे हमारे श्रावक हो, वृत्तिधारी श्रावक हो, मुनि हो, उन सब का आचरण कैसा होना चाहिए? जिनवाणी के अनुसार। जिनवाणी में सभी के लिए लिखा हुआ है कि क्या आचरण होना चाहिए। तो अगर हम वैसा आचरण करें तो वो होगी पारलौकिक विनय। और रत्नत्रय और रत्नत्रय धारियों का यथोचित सत्कार एवं सेवा पूजा करना। तो हमारे 5 परमेश्वरी हैं और जो भी सम्यक दर्शन ज्ञान के अध्यात्म में, उनका हमें सत्कार करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। तो यह है पारलौकिक विनय। पर क्या ये इतनी आसान है? नहीं, पारलौकिक विनय पाना बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए इसकी कोशिश करनी चाहिए और प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे आत्म विकास में सहयोगी। तो आत्म विकास कैसा वाला आत्म विकास? जिससे कि हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाए, हमारे कर्म छूट जाए, अच्छे कर्मों का बंधन हो। तो वो है, इस तरह से हमारी आत्मा का विकास हो, इस तरह की विनय है ये। और ये हमें हमारे मोक्ष मार्ग पे चलने के लिए, वो मोक्ष मार्ग को सुदृढ़ बनाने में हमारे लिए मदद करती है और संसार से पार लगाती है। तो ये पारलौकिक विनय की जब बहुलता हो जाएगी तो वही विनय संपन्नता है और विनय से संपन्न बन सकते हैं। तो विनय संपन्नता किसमें सहयोगी है? जैसा कि हम बात कर रहे हैं, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने में सहयोगी। और जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा तो क्या होगा? हम सब पूज्य बन जाएंगे। तो ये पूज्य बनाने में सहयोगी है। और जब विनय संपन्न होंगे तो ये बात तो निश्चित है कि हमें उच्च कुल एवं उत्तम गुणों से युक्त मनुष्य जीवन अवश्य प्राप्त होगा। विनय संपन्न होना जरूरी है। और विनय संपन्न होने से क्या होता है? गुण ग्राहकता बढ़ जाती है। गुण ग्राहकता अर्थात रिसेप्टिविटी। अगर हम जिनवाणी पढ़ेंगे, दूसरों से कुछ सीखेंगे, अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो हमारे ज्ञान की वृद्धि होगी। और उससे क्या होगा? हमारा व्यक्तित्व बहुत विकसित हो जाएगा। तो इस तरह से विनय संपन्नता हमारे लिए काफी सहयोगी है। तो अब हम पारलौकिक विनय को थोड़ा सा विस्तार में समझ लेते हैं। तो हमने 5 तरह के इसको 5 भागों में रखा है, या 5 प्रकार की है। वो है दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तत्व विनय, उपचार विनय। तो इनको एक एक करके अपन देखते हैं।
तो दर्शन विनय की बात करते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये सम्यक दर्शन से संबंधित विनय है। तो हम इसको थोड़ा सा परिभाषित करते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के कारणभूत 9 देवता। तो हमारे जो 9 देवता हैं, 5 परमेष्ठी, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु और जिनबिंब, जिनालय, जिनवाणी, जिनधर, ये हमारे 9 देवता हैं। तो ये 9 देवता से क्या होता है, ये हमारे लिए सम्यक दर्शन के कारण। और सम्यक दर्शन जो है उसको मिलाकर के अगर हम 10 चीज की बात करें तो इन 10 के प्रति अगर श्रद्धा का हम पूरे सच्ची श्रद्धा रखें तो वो होगी दर्शन विनय। और इन 9 देवताओं के गुणों के प्रति हम अनुराग रखें, सम्यक दर्शन के प्रति अनुराग रखें, तो वो है दर्शन विनय। हम 9 देवता की पूजा अर्चना करें, इनके गुणों का स्मरण करें, इनको हम नमस्कार करें, इनकी महिमा को प्रकट करें, तो ये सब दर्शन विनय है। और यदि किसी ने गलती से या ईर्ष्यावश इन 9 देवताओं पे कोई मिथ्या दोष लगाया हो तो उसको हम हटाएं, तो वो है दर्शन विनय। और दर्शन विनय ये भी है कि कभी अविनय ना हो इन 9 देवताओं की, ऐसा हम प्रयत्न करते रहें, वो भी दर्शन विनय है। और स्वयं निर्मल सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भावना रखें, ये है दर्शन विनय। तो सम्यक दर्शन से संबंधित विनय सम्यक दर्शन। अब हम बात करते हैं ज्ञान विनय की। तो फिर नाम से हम देखें तो सम्यक ज्ञान से संबंधित जो विनय है वो ज्ञान विनय है। मोक्ष के कारणभूत सम्यक ज्ञान को आदर सहित एवं यथाशक्ति ग्रहण करना और निरंतर सम्यक ज्ञान का स्मरण अभ्यास करना ज्ञान विनय है। तो सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने की हमें अभ्यास करना चाहिए। आलस्य रहित होकर देश काल और भावों की शुद्धि पूर्वक सम्यक ज्ञान के प्रति भक्ति भाव रखना, यह है ज्ञान विनय। और सम्यक ज्ञान के उपकरण हमारे लिए, सम्यक ज्ञान प्राप्ति का उपकरण क्या है, जिनवाणी है। तो जिनवाणी के प्रति भक्ति भाव रखना, वो है ज्ञान विनय। और सम्यक ज्ञान को धारण करने वाले ज्ञानवान पुरुषों के प्रति भक्ति भाव रखना, यानी हमारे जो 5 परमेष्ठी हैं उनके प्रति हमें भक्ति भाव रखना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। और आत्म विकास में सहायक बातों को पढ़ना, उनका चिंतन करना। जहाँ से भी हमें जिनवाणी का ज्ञान मिले, पुस्तकों से या किसी गुणीजनों से, हमारे परमेष्ठियों से, मुनियों से, साधुओं से, उपाध्यायों से, आचार्यों से, तो वो हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वो ये सब है ज्ञान विनय। अब है चारित्र विनय की बात करें तो ये है सम्यक चारित्र से संबंधित विनय। तो सम्यक चारित्र का पालन करना ही चारित्र विनय है। और चारित्रवान पुरुषों की विनय करना चारित्र विनय है। और जो हमारे तीर्थंकर हैं, हमारे 5 परमेष्ठी हैं और जो भी महात्मा हैं, उनका जब हम चारित्र का वर्णन सुने तो हम रोमांचित हो जाएं और उनके प्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट करें और ऐसी भावना रखें, तो यह है चारित्र विनय। तो चारित्र विनय का अर्थ जो है सम्यक चारित्र को पालन करना। जब तप विनय की बात करते हैं तो तप हम सब जानते हैं, तप क्या होता है। तो तपस्वी जन के प्रति भक्ति एवं आदर भाव रखना, चाहे वो अपने से उम्र या तपस्या में छोटे हों। अब इसमें 2 बातें आई हैं, उम्र या तपस्या में छोटे। तो हम जब आदर करते हैं तपस्वी जन का, तो वो हो सकता है वो हमसे उम्र में कम हो लेकिन उनकी तपस्या हमसे ज्यादा हो। या कई बार ऐसा भी होता है कि जो अच्छी तपस्या करते हैं, व्रत रख पाते हैं, लेकिन दूसरे लोग उनसे कम कर पाते हैं। तो जो कम कर पा रहे हैं उनकी भी विनय करनी है। हमारे विद्यासागर जी महाराज हैं, उनके वो कितने बड़े तपस्वी हैं, लेकिन फिर भी वो उनके संग में जो छोटे मुनि महाराज हैं उनकी विनय करते हैं। तो ये है तप विनय। तो हमें उम्र और तपस्या के आधार पे नहीं, बल्कि जो भी तपस्वी जन हैं जो तप कर रहे हैं उनके प्रति आदर भाव रखना चाहिए। यह है तप विनय। घर परिवार में, पास पड़ोस में, समाज में कोई भी अगर करने के लिए उपवास आदि तप रखता है तो हमें उनकी अनुमोदना करनी चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, सच्चे मन से, दिखाने के लिए नहीं। तो ये है तप विनय। और तपस्वी जनों की अवहेलना या अनादर नहीं करना, ये भी तप विनय है। अनादर का भाव मन में नहीं लाना, ये भी तप विनय है। विनय करना तो तप है ही, तप विनय, पर उसके खिलाफ नहीं करना भी तप विनय है। अब हम बात करते हैं उपचार विनय की। उपचार विनय में मुख्यतः हमारे आचार्य मुनियों के बारे में बताया गया है कि उनकी विनय करना उपचार विनय है। तो जब भी हमारे आचार्य और मुनि आते हैं सामने से, उनको देख करके हम आदर भाव अपने मन में लाएं, उसको व्यक्त करें, उठकर खड़े हो जाएं
तो ये है कि ये है उपचार विनय। उनको नमस्कार करें, ये उपचार विनय। अगर वो विहार पे चल रहे हैं तो उनके पीछे पीछे हम चलें, ये है उपचार विनय। और अगर मुनि महाराज हमारे सामने नहीं भी हैं, फिर भी हम परोक्ष में उन्हें मन, वचन और काय से नमस्कार करें, पूरे सही श्रद्धा से, सच्चे मन से उनको नमस्कार करें, यह उपचार विनय। और हमारे मुनियों के गुणों की कीर्तन स्मरण हम करें, उनकी प्रशंसा करें, तो ये है उपचार विनय। और रत्नत्रय के धारी गुरुओं के अनुरूप उनकी आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करना। अर्थात अगर हमने मुनियों के सामने कोई नियम लिए हुए हैं तो उन नियम को पूरी तरह से हमें पालन करना चाहिए। या अगर मुनियों ने हमें कुछ बात बताई है या हमें कोई आज्ञा दी है तो उसको हम माने और उसको उसके अनुसार हम अपना जीवन ढालें, उसकी अवहेलना ना करें। तो यह है उपचार विनय। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि इस विनय का व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम सब जानते हैं कि 8 मद होते हैं। वो है ज्ञान का मद, पूजा प्रतिष्ठा ऐश्वर्य का मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, रिद्धि संपत्ति धन वैभव आदि का मद, तप का मद, शरीर रूप आदि का मद। तो जो व्यक्ति विनयी होगा, जो विनय से संपन्न होगा, उसके जीवन में ये मद नहीं आएंगे, वो मदों से रहित हो जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन पर। और ऐसा व्यक्ति जो विनय से संपन्न है वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, अर्थात वो दूसरों में बुराई नहीं देखता। किसी से ईर्ष्या क्यों होती है? जब हम किसी से जलना शुरू हो जाते हैं या उनकी निंदा करना शुरू कर देते हैं, तो ना वो निंदा करता है ना बुराइयां देखता है, बल्कि वो दूसरों में अच्छाइयां देखना शुरू कर देता है और उनकी हमेशा प्रशंसा करता है, अनुमोदना करता है, उनके किए हुए अच्छे कार्यों की के लिए हमेशा वो दूसरों को बताता है। और अगर विनयी व्यक्ति का कोई मदद करे तो वो हमेशा धन्यवाद देता है। और अगर विनयी व्यक्ति से कभी किसी कारणवश से कोई गलती हो जाए तो वो क्षमा प्रार्थी होता है, या उसके खिलाफ कोई गलती हुई हो तो वो क्षमा भी कर देता है। साथ में वो हमेशा सत्य बोलता है, पर कैसा सत्य? कटु सत्य नहीं, हित मित और प्रिय सत्य बोलता है। और अनेकांत एवं स्वादवाद का अनुसरण करता है। जो विनयी व्यक्ति है वो हमेशा दूसरों की बात, दूसरों का जो पक्ष है, दूसरों का जो पर्सपेक्टिव है, उसको सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो अनेकांत देखता है हर चीज में और ये समझता है कि सामने वाले का पहलू अगर सत्य है, सही है, तो उसको वो एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके अपने उसको स्वीकार करता है। वो ऐसा नहीं कि एकदम से उसको नकार दे। तो वो हमेशा अनेकांत और स्वादवाद का अनुसरण करता है, अपनी वाणी में स्वादवाद लेके आता है और वो मदद एवं दान करने में हमेशा तत्पर रहता है, उसको पीछे नहीं हटता है। और ऐसा करने से क्या होता है कि जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो शक्ति है, वो एक तरह से समाहित हो जाती है, उसका केंद्रीकरण हो जाता है और ऐसी ऊर्जा का, ऐसी एनर्जी का लॉस नहीं होता और गुणग्राहकता बढ़ती है, उससे ज्ञान की वृद्धि होती है। तो जो विनयी व्यक्ति होगा वो हमेशा उसका ज्ञान बढ़ता रहेगा और उसके मन में हमेशा से शांति रहेगी। तो व्यक्ति का जीवन पे काफी प्रभाव है इसका, ये हमें समझना चाहिए। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, उसके पारिवारिक, सांसारिक, सामाजिक एवं व्यवसायिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके चारों तरफ का वातावरण बहुत ही सौहार्दपूर्ण होगा, वो सबसे सामंजस्य मिला के चलेगा या आपसे सामंजस्य बहुत अच्छे से बना रहेगा, जीवन शांतिपूर्ण होगा। और ऐसा होने से क्या होगा, पूरे विश्व में शांति फैलेगी। इस तरह से काफी प्रभाव पड़ते हैं। अपनी बात को मैं खत्म करने से पहले मैं 2 खास व्यक्तियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। एक तो हमारे कमल अंकल, जिन्होंने इस प्रेजेंटेशन का अच्छे से रिव्यू किया, काफी त्रुटियां थी वो ठीक करी और अंकल ने मुझे काफी जानकारी भी दी और ये प्रेजेंटेशन मैं बना पाया। और एक खास व्यक्ति का और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो है हमारे स्वाति जी विशाल जी की 10 साल की बिटिया कशिश, जो उन्होंने जो मुनि महाराज जी के, क्षमा सागर जी महाराज के जो प्रवचन हैं 16 खंड भावना पे, उसकी एक फिजिकल बुक है 150 पेज की, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके शेयर किया था। उसकी वजह से जब मैंने उसको पढ़ा तो उसको पढ़ करके ही मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को तैयार कर पाया। तो उनके इस कार्य की बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ कीजिए और मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपन कोई सवाल हो तो उस पर चर्चा करें और किसी को बात ऐड करनी हो तो अपन आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच नीरज जी, थैंक्स अ लॉट। बहुत ही सरल शब्दों में आपने पूरा व्याख्यान दिया और मतलब ऐसा लगा जैसे ये तो बहुत इजी है, हम कहाँ 16 कारण भावनाओं को डिफिकल्ट समझ रहे थे। हाँ। तो अब मैं ये फ्लोर ओपन करूंगी क्वेश्चंस के लिए। तो इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, या जसवाल अंकल, वाईके अंकल, अगर आप लोग पहले कुछ ऐड करना चाहें। मैं कुछ चीज अंकल। कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये बहुत ही सुंदर लगा और बहुत ही सरल, उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। बाह्य तपों की जब बात हुई थी तो बाह्य तप में अपन देखें कि ऑर्डर में दिया है, शुरू में इजी वाले होते हैं और जैसे जैसे वो बढ़ते चले जाते हैं, बाह्य में भी और अंतरंग में, तो उनका ऑर्डर बढ़ता चला जाता है, वो और कठिन और महत्वपूर्ण होते चले जाते हैं। तो अपन बाह्य तप में देखें, पहले पर आएगा प्रायश्चित और विनय आता है नंबर 2 पे। मतलब प्रायश्चित से ज्यादा कठिन और महत्वपूर्ण विनय है। कारण प्रायश्चित तो वन टाइम जॉब है, अपन ने क्षमा मांग ली या प्रायश्चित ले लिया खत, पर विनय आपके लाइफ स्टाइल है जो आपको हर समय रखना होगा। ये नहीं कि कभी कर लिया और कभी नहीं करी, राइट। दूसरा, ये जो सादगी को इन्होंने एक पर्यायवाची दिया, ये पहली बार मैंने देखा, पर समझा इस बात में दम है। मैंने इससे पहले इस पर गौर कभी नहीं किया था, ध्यान भी नहीं। क्यों? अगर मैं तीन झाम और दिखाने वाला होऊंगा तो फिर मेरे अंदर विनय आएगी नहीं, मेरे अंदर मद आएगा और फिर मैं विनय संपन्नता या विनय भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर दिखावा ज्यादा है, मेरी कार, मेरे कपड़े, मेरा चश्मा बहुत कीमती, आदि आदि। ये जो बात की भैया ने पुण्य बंध की, इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा। ये पुण्य प्रकृति तो है, तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति तो है, पुण्य का बंध हो रहा है, लेकिन ये एक ही ऐसी पुण्य प्रकृति है जो आगे फर्दर इसको और पुण्यों को नहीं, कर्मों को नहीं बांधती। आप उसको वो तो करते हैं, यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, पर वो फर्दर आपके कर्मों को नहीं मानती। ये एक ही ऐसी पुण्य प्रकृति है, वरना जो भी पुण्य प्रकृति मेरी होंगी वो आगे अपना संतति सिलसिला देकर जाती। एक ये पॉइंट था। दूसरा, एक जो एग्जाम्पल भैया कह रहे थे कि आपस में बड़े वाले छोटे को भी करते हैं, तो एक प्रश्न आया कि जब बिहार होता है तो मुनिराज देव दर्शन कैसे करते हैं? क्योंकि अपनी जो आखिरी लेके निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं? तो उन्होंने बोला हम लोग अपने आचार्य भगवान के दर्शन कर लेते हैं और फिर हम नियम ले लेते हैं। फिर प्रश्न किया, आचार्य क्या करते हैं? भाई आचार्य के पास अल्टरनेटिव नहीं है। उस समय तुम्हारा वो पॉइंट वहां क्लियर हुआ कि आचार्य भगवान मुनिराजों के दर्शन करते हैं। आप देखिए, गुरु हैं, आचार्य हैं, लेकिन दर्शन किनके कर रहे हैं? जूनियर्स के। सिमिलरली जब कोई मुनि कोई भारी तप करता है, जैसे 24 घंटे 36 घंटे बैठे रहेंगे, तो आचार्य उनको नमस्कार करते हैं पीछे उठा के। और जब दीक्षा होती है तब भी आचार्य भगवान उनको बाय नेम, जो नाम दिया जाता है, नमोस्तु करते हैं पीछे उठा के पहले। तो कई दफे मुनिराजों ने बताया कि हमको बड़ा अजीब लगा कि हमारा नाम लेके आचार्य भगवान कह रहे हैं नमोस्तु महाराज। अब प्रश्न आया कि पहले दिन ऐसा क्यों? तो उसका जवाब क्षमा सागर जी महाराज ने दिया था कि जिस समय हम लोगों की दीक्षा होती है उस समय ऐसी हमारे अंदर से एनर्जी निकलती है कि फटती है हम, तो विशुद्धता की वो क्लाइमेक्स होती है जो उस समय आचार्य भगवान में न हो। तो उनको लगता है इन लोगों की विशुद्धता मेरे से बहुत ज्यादा है, इसलिए इंडिविजुअली हर मुनि को वो नमस्कार करते। एक विनय का सम्यक दर्शन से डायरेक्ट संबंध।
वो कैसे? कि जब आपके अंदर मद नहीं होगा, और सम्यक दर्शन के लिए मद न होना बहुत कंपलसरी है। इस तरह से अपन देख सकते हैं कि विनय सम्यक दर्शन से डायरेक्ट संबंधित है। अब भैया से एक मेरा प्रश्न होगा कि दान को विनय में कैसे आप जोड़ेंगे? दान से विनय का कैसे संबंध आपने जोड़ा? ये भी मेरे लिए एक नया पॉइंट था। नीरज भाई। हाँ, तो अंकल मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति विनयी होगा वो दूसरों की भलाई के लिए हमेशा सोचेगा। ब्राह्मण जब कह रहे हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, क्योंकि उनकी भावना क्या होती है कि इस पूरे लोक के जीवों का भला हो जाए। कौन सा भला? ऐसा भला कि वो वापस से जन्म ना लें, सब मोक्ष चले जाए। तीर्थंकर बनने के लिए उनका जो सोचने का तरीका है वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, पर वो तो सबका भला कर रहे हैं। तो हम जो सांसारिक लोग हैं, अब हम विनयी बनने की बात कर रहे हैं, तो हमको दूसरों के भला तो सोचना पड़ेगा ना। अब दूसरों के भले की बात सोच रहे हैं तो अब भला कैसे होगा? खाली सोचने से तो नहीं हो जाएगा। जो आप सोचोगे वो आपके वचन में और आपके कार्य में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो जो विनयी व्यक्ति होगा, जब उसको दिखेगा कि सामने वाला व्यक्ति दुखी है, उसको किसी तरह की मदद चाहिए, तो वहां पर मदद करना भी दान है। चाहे वो ज्ञान का दान करे या फिर वहां पर किसी सांसारिक वस्तु का दान करे, या पैसा दे करके उसको उसका कष्ट दूर करे, या उसको खाना खिला के उसको दूर करे, या उसको कपड़े दे के उसका दुख दूर करे। किसी को सर्दी लग रही है तो वो कंबल जाके उसको दे, जो भी है। तो विनयी व्यक्ति अगर विनयी है और दूसरों का भले की सोच रहा है तो वो दान अवश्य करेगा। इसलिए मैंने विनय को दान से जोड़ा। गुड। स्वाति, तुमने नाम चेंज किया क्या बेटा? विशाल नाम रख लिया तुमने अपना नाम? विशाल है या स्वाति? नहीं, मैं चेंज करती हूँ। नहीं, बट अंकल आपने बहुत अच्छा पॉइंट, इनफैक्ट जैसे ही मैंने भी ये सुना था कि भैया ने विनय को दान से लिंक किया, मुझे भी थोड़ा सा वो लगा था, मतलब डिफरेंट लगा था, क्योंकि नॉर्मली मैंने भी आज तक जब भी विनय को सोचा है, हालांकि दान विनय ये सब एक ही तरह की प्रवृत्तियां हैं, मतलब वो सद्गुणों की तरफ है, लेकिन मैंने कभी दान को विनय से नहीं किया था। और तो एक हाँ, डायरेक्टली नहीं वो एट्रीब्यूट किया था। तो लेकिन वो फिर भैया आगे बढ़ गए, वो एक कुछ क्षण के लिए उन्होंने ये पॉइंट बोला, लेकिन आपने ये वापस रिपीट किया। तो दिस इज, और मैंने जब आपने ये पूछा और भैया आंसर कर रहे थे तो मैंने भी डीपली सोचा। तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि क्यों विनय एक्चुअली थोड़ा एक्सटेंडेड ही है ये, लेकिन फिर भी विनय दान से कैसे वो रखता है। तो जैसे मैं बचपन में, जैसे आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, और मुझे थोड़ा सा, मतलब जब खूब सक्सेस मिली तो मैं काफी पॉसेसिव भी हो गई टुवर्ड सक्सेस। तो एक बार जैसे मैंने एक बार फ्रेंड ने मेरे से कोई बुक मांगी, तो मैंने उसको नहीं दिए कोई नोट्स ये वो। लेकिन अब मैं अगर सोचती हूँ कि अगर मेरे में तब ह्यूमिलिटी होती, ये प्राइड नहीं होता मेरे में कि मैं ज्यादा सक्सेसफुल हूँ, और मेरे में ह्यूमिलिटी होती कि ये सक्सेस जो मुझे मिल रही है, ये कोई मेरे केवल वो किताबी ज्ञान जानने से थोड़ी मिल रही है, ये तो उसके लिए तो बहुत फैक्टर्स है, और उसमें मैं कर्तृत्व भावना नहीं रखती और मैं ह्यूमिलिटी रखती, तो फिर मैं उस ज्ञानदान को अवश्य करती। मतलब वो एक्चुअली ज्ञानदान नहीं, वो लौकिक ज्ञानदान ही था, लेकिन वो मैं अवश्य करती। तो वो ह्यूमिलिटी की कमी होने से और प्राइड की और वो ईगो की बहुलता होने से वहां वो मैं नहीं कर पाई। तो जब ह्यूमिलिटी होती है तो पर्सन ज्यादा आसानी से कर पाता है। ये एक मेरे लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जांपल है। बहुत सुंदर बात कही आपने स्वाति, वेरी पर्टिनेंट पॉइंट, कि जब हमने ये पहले कह दिया कि विनय के लिए ये आवश्यक है कि सब प्रकार के मद का अभाव हो, उनका सद्भाव न रहे। तो जब मद का अभाव होगा तो स्वतः उसमें जो अहम है हमारा, वो उसका शमन होगा, और जब अहम का शमन होगा तो हमारे पास जो भी कुछ है उसको हम, उसके साथ ममकार का भी शमन होगा। यानी अहंकार और ममकार, ये दो हमारे मुख्य दुर्गुण होते हैं। तो उसके साथ अहंकार गया तो अहम जब नहीं रहा तो मम कहाँ रहा। जो अहम का मतलब होता है कि जो मम का है,
यानी अगर संस्कृत में आप देखें तो षष्ठी विभक्ति में जो अहम का रूप बनेगा वो मम होता है। तो जब अहम नहीं है तो मम कहाँ से है? तो ममकार नहीं है तो फिर दान दे सकते हैं, है ना, क्योंकि वो आपका है ही नहीं, आप मान ही नहीं रहे हैं उसको। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत गहरी बात कही। मैं एक, अगर अनुमति हो तो मैं एक पॉइंट पर थोड़ा हाँ जी अंकल इलेबोरेट करना चाहूंगा कि विनय, जैसा कि नीरज ने कहा कि दो तरह के तप होते हैं, बाह्य तप और अंतरंग तप। तो विनय अभ्यंतर तप में आता है ना, अंतरंग की बात। तो जब पारलौकिक विनय का इन्होंने वर्णन किया तो 4 तरह के विनय जो हैं, पहले दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और तप विनय। ये हमारे अपने मामले अंतरंग के, और उपचार वो लौकिक बात आ गई है, वो बाह्य। तो इसकी जो परिभाषाएं होंगी, दर्शन विनय क्या है, ज्ञान विनय क्या है, तो उसमें थोड़ा सा एलेबोरेशन में मिक्सअप हो जाता है, सब तरह की चीजें उसमें आ जाती है। पर उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो उसके अंतरंग पक्ष को उजागर करे वो इनमें आना चाहिए सबसे पहले। यानी ज्ञान विनय, तप विनय, चारित्र विनय और दर्शन विनय, इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि इन गुणों को प्राप्त करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं वो फिर विनय है ना। कि सम्यक दर्शन को हम उसके शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए जो उद्यम करते हैं, जो प्रयास करते हैं, वो इसके अंदर आता है। यानी मतलब ये कि हमारी साधना ये है कि उसके जो 8 अंग हैं उनको हम कैसे प्राप्त करते हैं, है ना, कि हमारे निशंक हो, हमारा निष्कांक्षित हो, निर्विचिकित्सा हो। तो ये सब जो 8 अंग हैं, उपगूहन वगैरह वगैरह, ये स्थितिकरण, प्रभावना, ये सारे जितने वात्सल्य, तो इन अंगों को हम अपने अंदर विकसित करने के लिए जो उद्यम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हैं, वो दर्शन विनय का असली। इसी तरह से सम्यक चारित्र प्राप्त करने के लिए, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो करते हैं, वो उन विनयों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और जो उसके इन गुणों, जिनमें ये, जिन कारणों से ये गुण होता है, यानी इसके उपकरण, इसके निमित्त और जो इसके धारी हैं, वो उन सब की विनय करना, वो सारा का सारा औपचारिक विनय में, उपचार विनय में आ जाता है। तो ये इसका यानी फिलोसॉफिकल जो क्लासिफिकेशन है वो ये है। पर हम जब डिफाइन करते हैं तो उसमें वो भी शामिल कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि उपचार विनय की परिभाषा में जो कुछ आता है वो फिर उन 4 विनयों में हम उनको भी समाहित कर लेते हैं। तो ये इस तरह का ओवरलैप होता जाता है। लेकिन अगर हम स्ट्रिक्टो सेंसु उसको कहते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसका मीनिंग क्या है, तो वो सारे से सारे अंतरंग हैं और ये बहिरंग। अंतरंग का मतलब ये होता है कि किसी बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं है। वो जो 6 तप हैं, जो अंतरंग तप हैं, आभ्यंतर तप हैं, उनमें किसी बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं। ये मेरा एक प्रश्न है योगेन जी से, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपने कहा कि वो विनय ही ऐसा एक पुण्य है जो कर्मों का बंध नहीं करता है। तीर्थंकर प्रकृति के संबंध में कहा था ये उन्होंने कि ये एक ऐसा। हाँ, तो उसमें भी अगर आपने योगेंद्र जी से प्रश्न किया है वो उसका उत्तर देंगे, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो उन्होंने कही थी उसी को मैं थोड़ा एलेबोरेट कर रहा हूँ कि एक तो बंध होता है, कोई भी कर्म होता है ना, उसका हम बंध करते हैं, तो बंध भी होता है और अनुबंध भी होता है। अनुबंध का मतलब ये होता है कि जब जो बांधा हुआ कर्म है जिसको हम बंद कर रहे हैं, जब वो उदय में आएगा तो तब जो हमारे परिणाम होंगे उन परिणामों से उसी प्रकार के और पुण्य का बंध, पुण्य या पाप का बंध होगा, तो वो अनुबंध कहलाता है। बंध हुआ और एक अनुबंध हुआ। फिर से कहें जरा इसको, फिर से कहें। एक बंध हुआ और एक अनुबंध हुआ। बंध करने, जो बंध में जो कर्म हमने बांधा
उस कर्म के उदय में आने में जो परिणाम होंगे उसमें उसी प्रकार के पुण्य का या पाप का बंध और होगा, तो वो अनुबंधी हो गया, अनुबंध हो गया। तो योगेंद्र जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यहाँ पे बताया था कि तीर्थंकर प्रकृति ऐसी है, एकमात्र ऐसी प्रकृति है कि जिसमें अनुबंध नहीं हो रहा, कि आपने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, पर वो प्रकृति, वो बंध ऐसा हुआ कि उससे फिर कर्मों का बंध समाप्त हो गया। क्योंकि जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया, तो जब वो उदय में आएगा, व्यक्ति तीर्थंकर बनेगा, तो तब फिर उसके बाद फिर किसी कर्म का बंध नहीं करेगा, सब कर्मों से मुक्ति पा जाए। ये प्रकृति एकमात्र ऐसी प्रकृति है कि जिसमें फिर अनुबंध की संभावना नहीं। कमल भाई ने अभी इसमें एक पॉइंट कहा कि जब पुण्य का उदय आएगा उसमें पाप भी बांध सकते हैं और पुण्य भी बांध सकते हैं, पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और हमको बड़ा सावधान रहना चाहिए इसके लिए कि पुण्य का जब उदय आए तो हमको ज्यादा सावधान रहना है कि उस समय हमको मदहोश होने की संभावनाएं बहुत होती हैं और प्राय पुण्य के उदय में हम पापानुबंधी कर लेते हैं, पाप का अनुबंध कर लेते हैं। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति ऐसी है कि वो न पुण्यानुबंधी करती है न पापानुबंधी का तो सवाल ही नहीं। स्वाति। हाँ जी, हाँ जी। और किसी के और क्वेश्चंस हैं? तो मेरा हाँ जी पीयूष भैया। तो आई थिंक ये विनय संपन्नता भावना में लागू होता है, पर और भी भावनाओं में लागू होता है। पॉइंट ये है कि अगर हम सोचें कि विनयवान होना चाहिए, यानी हमें अपना ईगो नहीं होना चाहिए, हमें झुकना चाहिए, तो मतलब हम किसी से भी पूछें, एक मतलब जिसने जैनिज्म को नहीं भी पढ़ा है उससे भी पूछें तो वो बोलेंगे हाँ सही बात है। काफी नेचुरल सी बात है कि भाई आपको मान नहीं होना चाहिए, आपको विनय दिखानी चाहिए। और जो अपने से बड़े होते हैं या जिनके पास धन होता है या पावर होती है उनके सामने तो सब दिखा भी देते हैं, पर ऐसे सुन के जिनके पास नहीं भी है उनके सामने भी थोड़ा झुक जाना, ये तो एक बात हुई कि बाहर में कई लोग दिखा देते हैं। पर मेरा पॉइंट ये है कि हम अगर मान लो सिखा दिया कि ऐसा करना चाहिए, जैसे एक बच्चे को बता दिया कि धोख देना चाहिए तो वो धोख दे देता है, तो ये एक तरह से जैसे एक्टिंग करने वाली बात होगी कि भाई मुझे जाके, मतलब आपने दुकानदार का एग्जांपल दिया कि वो दुकानदार ग्राहक आता है तो उसके सामने झुक जाता है, चाहे मन में सोच रहा हो कि ये कौन पागल आदमी आया है इसके सामने, पर जब उसको एक्टिंग करनी पड़ी तो सवाल ये उठता है कि अंदर से विनय कैसे हो जब आपको वास्तव में ऐसा लगे कि जो सामने आप किसी भी जीव से मिल रहे हैं तो उसके सामने आप अपने आप को बढ़ाना समझें और फिर उस तरह से व्यवहार करें। तो जैसे एक बात ये कि आप जब ये समझते हैं कि आपको जो भी आज मिला है, जो भी पद मिला है, धन मिला है या जो भी वैभव मिला है, वो आपके कर्मों का, पुराने कर्मों का है या जो भी है उसमें आपका मतलब ऐसा कोई योगदान नहीं जिससे आप बड़ा फील करें। तो एक तो ये तरीका होता है, पर मैं और भी सुनना चाहूंगा कि और ऐसा क्या तरीका हो सकता है कि विनय जड़ में पैदा हो, तो ताकि वो एक एक्टिंग ना रह जाए, वो एक वास्तव में अंदर से विनय हो, जिसमें आप आपके हर आचरण में आपका विनय झलके। और इसमें जस्ट मे बी एक फॉलो ऑन क्वेश्चन, यही मेरा सिमिलर क्वेश्चन था पीयूष भैया ने जो पूछा, और एक रिलेटेड पॉइंट था कि जब बोलते हैं कि गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जाए, तो कई बार देखा है कि डे टू डे लाइफ जनरली द फर्स्ट टेंडेंसी इज टू लुक एट नेगेटिव, इवन इन द न्यूज मीडिया, इवन अदरवाइज। को अगर अच्छा कर रहा है तो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे डीप रूटेड वो एक सद्गुण का भाव आए और हित का भाव आए, विनय का भाव आए। दैट वाज माय क्वेश्चन एज वेल। पीयूष, एक पॉइंट इसमें अपन देखें, अगर मैं सबके अंदर सेम आत्मा को विश्वास कर रखता हूं कि जैसी मेरी आत्मा है वैसी सबकी है, छोटे की भी और मेरी भी, जीव जंतुओं की भी, तब मेरे अंदर जो विनय होगी वो अंतरंग से होगी। अगर मैं आत्मविश्वास नहीं रख रहा हूँ, आत्मा पर विश्वास नहीं रख रहा हूँ, तो अंतरंग से विनय आने की संभावनाएं कम हो जाती। दूसरा, कर्म सिद्धांत सेकंड नंबर पे आएगा कि अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ, रूपवान हूँ, पैसे वाला हूँ, तो क्यों हूँ? क्योंकि मेरे पुराने पुण्यों का उदय चल रहा है। जो मुझसे कम है वो कम क्यों है?
क्योंकि उस बेचारे के पुण्य का उदय नहीं है। ये तो प्रीवियस हिस्ट्री की बात हो गई ना। लेकिन आज मैं क्या हूं, आगे के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये सब चीजें अगर मैंने एनालाइज किया, तत्व ज्ञान थोड़ा सा रखा, तो फिर मेरे अंदर अंतरंग से विनय आने की संभावना पूरी हो जाएगी। एक दूसरी चीज एक और अभी बातों में निकली कि विनय, तीर्थंकर प्रकृति, ये साधारण विनय से काम नहीं चलेगा। इसीलिए उन्होंने विनय के साथ संपन्नता रखी। कंप्लीट संपन्न है वो आदमी, क्या है, पैसे से संपन्न है, 2-4 हजार वाला आदमी नहीं है, वो तो करोड़पति अरबपति है, सब तरह से संपन्न। वो अगर होगी तब तीर्थंकर प्रकृति की आप बात कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। स्वाति। हाँ जी, अंकल मैं ये कहूंगी इसमें कि फ्रैंकली जो वाई के अंकल ने एग्जैक्टली बोला, फर्स्ट पॉइंट वो ही मेरे भी जो पीयूष भाई ने पूछा था कि और कैसे हम सोचें या दृष्टि रखें, कैसे हम विनय मतलब आडंबर रूप ना करें और रियल में करें, तो वो ही मैं मतलब, और ये आई डोंट थिंक कि ये हमें याद भी रखना, ये हमारे अंदर इनग्रेन्ड हो जाता है कि हम किसी को भी देखते हैं तो हम उससे विनयशीली व्यवहार करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आप जन्मों जन्मों तक जब हम ये विनय को फॉलो करते हैं, तब हम उस पे पहुंचते हैं कि हम किसी से भी मिलते हैं तो उसको वही आत्मा समझते हैं जिसमें परमात्मा बनने का सामर्थ्य है, जिसमें शुद्ध आत्मा बनने का सामर्थ्य है। तो आई थिंक वैसे ही हो जाता है। और मेरे ख्याल से इस ग्रुप में तो मैं जिनको जानती हूँ सभी विनय संपन्न है। तो एक ये है। सेकेंडली मतलब मैं कई बार, जैसे बीइंग अ लेडी, मेरे साथ ऐसी शायद ज्यादा सिचुएशंस आती हैं, स्पेशली इन रिलेशंस, जहां लोग ऐसे व्यवहार भी करते हैं विच शुड नॉट बी देयर, मतलब जो एक्चुअली विनय संपन्न व्यवहार नहीं है। तो मैं जब भी मैं नेगेटिव होती हूँ किसी के प्रति, तो मैं ये सोचती हूँ कि उन्हें भी मोक्ष, वो भी मोक्ष जाएंगे और मैं भी मोक्ष जाऊंगी। तो एक्चुअली तो वो भी ग्रेट सोल्स है और मैं भी ग्रेट सोल्स हूँ। उनका जन्म भी जैन धर्म में हुआ है, मेरा भी जैन धर्म में हुआ है। फिर मैं क्यों ये सोचूं कि नहीं उनके ख्याल अच्छे नहीं है, ये नहीं है। तो आई ट्राई टू even justify my life situations with this ki they are equally elevated souls to get everything. So that way I think विनय संपन्नता, ह्यूमिलिटी बढ़ती है कि, और अपने आत्म दृष्टि बढ़ती है कि हम अपनी ही देख लें कि हम कहाँ गलती पे हैं। तो इसमें एक दो पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे भाई के अंकल ने बोला था कि कर्म सिद्धांत वाली बात, वो इतनी महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि उसको अगर समझ लें तो विनय आना बहुत मुश्किल नहीं है, पर उसको समझना और उसको अपनी लाइफ में लाना थोड़ा डिफिकल्ट है। और इसमें अपन ने आज एक चीज देखा, लोकानुवृत्ति, लौकिक विनय पर अपन ने बात करी कि भाई अपन दिखावे में करते हैं, पर दिखावे में ना करें, एक्शन में ना करें, पर उसको मन से करें। जब मन से करेंगे तो एक्शन में अपने आप आ जाएगा। तो मन से शुरुआत होनी चाहिए। और दूसरा, जैसे बात आई कि कैसे अपन अपनी इसको जड़ में डालें, तो जड़ में डालना एक आई थिंक मेरे साथ एक अभ्यास है। बिना अभ्यास के वो जड़ में आना मुश्किल है। और मैंने जब ये पढ़ रहा था, मैं समझ रहा था, तो मैंने एक चीज सोची कि विनय तो हम सोच लेते हैं, बात कर लेते हैं, पर लाना कैसे है जीवन में। तो मैंने अपने ऊपर एक ऐसे एक तरह से मैंने एक चेक पॉइंट बनाया कि मैं कब विनय से सोचूं अंदर, कि किसी व्यक्ति ने अगर मुझे कोई ज्ञान दिया या किसी ने कोई मदद करी, तब मुझे सोचना चाहिए कि देखो मेरे पास मुझको इसका बात का भी ज्ञान नहीं था, ये बात भी पता नहीं थी, और इस व्यक्ति के पास मुझसे ज्यादा ज्ञान है, मुझसे ज्यादा समझ है, और आज इसने मुझे मदद करी है, तो मुझे उसके प्रति विनय होनी चाहिए। अब उसके प्रति क्यों, सबके प्रति क्यों नहीं? तो फिर ये होना चाहिए कि हमको सबके प्रति विनय रखनी चाहिए। तो ये सांसारिक बात कर रहा हूँ मैं, निश्चय की बात नहीं है। व्यवहार में भी विनय आएगी तो शायद हम धीरे धीरे पारलौकिक विनय की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। ये मेरा मतलब खुद का मानना है, इसको पढ़ते वक्त मैंने सोचा। नीरज की विनय तो जाहिर है, बार बार ये रिपीट करते हैं कि कमल भाई ने करेक्शन किए, कमल भाई ने करेक्शन किए, पिछली बार भी, अभी भी। तो आपकी विनय तो जग जाहिर है।
एक पॉइंट मैं इसमें अपना बताऊं, क्षमा सागर जी महाराज हमेशा एक पॉइंट पे बहुत स्ट्रेस देते थे, कहते थे भैया हर चीज का स्वभाव बना लो। दान करते समय ये नहीं कि इस आदमी कैसा है, कितना दूं नहीं दूं क्या करूं, तुम्हारा हाथ जेब में जाना चाहिए। अगर सामने करुणा के लायक कोई चीज है, तुम्हारा हाथ जाना चाहिए। सेम इज द केस विद विनय। विनय हमारा स्वभाव होना चाहिए, न कि हमको कैलकुलेशन के साथ करोगे तो वो बाई होगी, लेकिन अगर स्वभाव होगा तो अंतरंग होगा। कमल भाई, एक पॉइंट मैं भी कहना चाहूंगा इसमें कि जो ये बात कही जा रही है कि हम सभी में वही आत्म तत्व देखें जो हम में है, और जिसमें शुद्धात्मा तत्व शुद्धात्मा बनने की संभावनाएं हैं, और उससे विनय आती है। तो उससे केवल विनय ही नहीं आती, जितने भी गुण हैं सारे गुण उससे प्रकट होते हैं, सारे धर्म उसी से प्रकट होते हैं। अहिंसा का भी तो यही मूल है। अहिंसा कैसे? अहिंसा ये कि जब आप मानते हैं कि सब वैसे ही हैं जैसे आप हैं, तब आप कैसे किसी को चोट पहुंचा सकते हैं? अहिंसा भी उसी से आती है। हर एक जितने भी हमारे आर्दव आर्जव या जितने भी हमारे व्रत हैं, वो सब के अंदर वही भावना है, वही नेत है। ये बेसिक चीज कि आत्मदृष्टि ऐसी जिससे कि आपको न केवल अपनी संभावनाएं दिखाई दें, लेकिन औरों की भी सारी संभावनाएं दिखाई दें। उसी से हमारे सारे धर्म और सारे हमारे जितनी रिकमेंडेड बिहेवियर हैं वो हमारे अंदर इनग्रेन हो जाते हैं, अगर हम इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से इस पर श्रद्धान कर लें कि वो भी दूसरा भी अन्य कोई, चाहे वो मनुष्य हो या कोई और जीव हो, वो भी उसी प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करेगा जैसा कि हम अपने प्रति चाहते हैं। ये गोल्डन रूल ये सिर्फ जैनिज्म में नहीं सभी धर्मों में है, लेकिन इसे इतनी गहराई से और इतने विश्वास का अंग बनाकर और शायद कहीं नहीं कहा गया। और एक और प्रश्न आया था कि इस पे थॉट्स पूछे थे कि गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पे जावे। तो ये कैसे डेवलप करें? तो ये भी एक क्वेश्चन था, अगर वाईके अंकल, कमल अंकल कोई इसको लेना चाहें। मेरी जो लास्ट ट्रेनिंग हुई थी स्टाफ कॉलेज में सीनियर मोस्ट पोस्ट पर, उसमें एक पूरा सेशन इस पर था कि हाउ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स और कैसे प्रेजेंट करें। तो उसमें यही था, सबसे पहले स्टार्ट करो उनकी मेरिट से, कभी किसी को डिमेरिट से मत स्टार्ट कर देना। जब मेरिट से शुरू करोगे तो उसका रिसीवर ऑन हो जाएगा, उसके बाद वो तुम्हारी डिमेरिट्स भी बताओगे, उसके ड्रॉबैक्स भी बताओगे, वो भी स्वीकार कर लेगा। तो इसमें तो फायदा ही फायदा है, अगर हम उसकी पॉजिटिव चीजें देख रहे हैं और पॉजिटिव चीजों को सराह रहे हैं, वो भी खुश और मैं भी खुश, है ना स्वाति? हाँ जी। दोषों पर दृष्टि जाने के दो यानी पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप किसी को छोटा करने के लिए उसके दोषों का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आपके इन्फ्लुएंस के सर्कल में हैं, जिनके परफॉर्मेंस को लेकर आप भी किसी तरह से अकाउंटेबल हैं, तो उनको उन दोषों के निराकरण के लिए अगर आप बता रहे हैं बिना किसी ऐसी भावना के कि उनको हम छोटा साबित कर दें या उनका अपमान करें या उनकी किसी तरह से मजाक बनाएं, तो वो परमिटेड है। पर जैसा कि कहा योगेंद्र जी ने कि पहले आप उनके जो उन्होंने अच्छा काम किया है उसकी तारीफ करें, जिससे कि वो आपके जो ऐसी यानी उपकार के लिए जो आप उनकी त्रुटि को बता रहे हैं उसके लिए वो रिसेप्टिव हो जाए। तो यानी इसमें फिर स्टैंड पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका अभिप्राय क्या है। अगर किसी के दोषों के का उल्लेख भी आप कर रहे हैं तो उसका अभिप्राय क्या है। तो उसमें आप कुछ सावधानियां बरतेंगे, जैसे कि आप ऑफिस सिचुएशन में अगर लें कि पब्लिकली अगर आपकी मीटिंग हो रही है तो उसमें आप किसी के दोष निकालने लगे
तो फिर उसकी आप एक तरह से एक उसका अपमान भी कर रहे हैं साथ में। तो इसलिए जब दोष आपको किसी के इंगित भी करने हैं तो ऐसे समय आप करें कि जबकि और कोई वहां पर उपस्थित न हो, और उसको भी आप प्यार से अगर समझाएंगे तो ना उसे बुरा लगेगा ना आपको ऐसा करने में। मैं इस पॉइंट पे अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, प्रोफेशनल लाइफ का है। मेरे को 12-13 साल हुए थे वर्क करते हुए, और एक बार हमें कुछ फीडबैक मिला हमारे यूएस बेस्ड क्लाइंट्स से। तो मेरी फीडबैक तो खैर रेगुलर मिलते ही रहते थे, लेकिन उस फीडबैक में वो फीडबैक आया तो माय एंटायर टीम वाज लाइक कि ऐसे ही फीडबैक देते हैं, काम अच्छा करते हैं फिर भी वो, एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग कि द पर्सन इज गिविंग द राइट फीडबैक, टीम ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, मतलब जब एंड वी वर ऑल द एंटायर टीम इंक्लूडिंग मी वर on the same side, but I never felt like questioning the feedback that was given, but the entire team said so. तो ये चीज जब मेरे साथ, मतलब मैंने उन दिनों ऑब्जर्व की 5-7 बार हुई, तो लिटरली मैंने ये मुझे ये हुआ कि बहुत कम लोगों की दृष्टि होती है कि अपनी गलतियों पे दृष्टि डालें, सीधा वो कि वो दूसरा फीडबैक दे रहा है, वो फीडबैक ठीक नहीं है, तो दृष्टि उनकी ये काउंटर में कि तुमने ऐसे कैसे कह दिया। अरे ये तो सोचो कि जो कह रहा है अगर उसमें हमारा कुछ इम्प्रूवमेंट होता है तो क्या बुराई है इसमें, मतलब द पर्सन इज नॉट डिक्रीजिंग योर इंक्रीमेंट और बोनस, इज जस्ट गिविंग अ सिंपल फीडबैक ऑन अ डिलीवरेबल। तो हम वो कर ले। तो एक ये भी मैंने देखा है कि ये भी जो है गुण ग्रहण का भाव रहे न दृष्टि न दोषों पे जावे, ये भी आत्म दृष्टि अगर होती है तो ये स्वतः ही इजीली ज्यादा हो जाता है कि गुणों पे आपकी दृष्टि, क्योंकि आप अपने पे दृष्टि रखते हो पहले, तो आप सोचते हो अच्छा वो जो कह रहा है हाँ ये चीज तो कमी है, तो फिर आप उससे हटके खुद पे आ जाते हो और फिर स्वतः ही उसको एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है उसकी। या इन अ डिफरेंट वे कि जब आप किसी को देखते हो तो मतलब मेरे ख्याल से ये और जो पहले वाला क्वेश्चन था पीयूष भैया का वो रिलेटेड है कि ये चीजें आप मतलब मैं तो आजकल ये बिलीव करती हूँ कि जन्म भर तक जब हम एटलीस्ट एक जन्म तक इस क्वालिटी को प्रैक्टिस करेंगे तब ये हमारे में थोड़ी सी आएगी, चाहे वो स्वभाव से विनय होना है कि आप हर स्थिति में विनयशील बिहेव करो, चाहे वो गुण ग्रहण की प्रवृत्ति हो, वो हमें जन्मों जन्मों तक इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब वो हमारे में आएंगी। Take every feedback as a constructive feedback. The problem is people take feedback as a negative, but they need to change it rather than calling it negative feedback. Just say constructive feedback. Then it will automatically become that you will take it as a positively. Right. वो normally ऑफिस लाइफ में ऐसा है। कमल भाई के पॉइंट पे मुझे याद आ रहा है, क्षमा सागर महाराज जी ने एक दिन प्रवचन में बोला सत्य कभी कड़वा नहीं होता। अब हम लोग एकदम चमक गए कि अभी तक तो सुनते आए थे कि सत्य कड़वा होता है, बोले कभी कड़वा होता ही नहीं है। होता क्या है कि उस सत्य को तो अपनी वैमनस्यता के एनवलप में रख के जब पास ऑन करते हो तब वो कड़वा देखने लगता है। जैसा कमल ने अभी एग्जाम्पल दिया था कि मीटिंग हो रही है और मीटिंग में आपने चालू कर दिया कि तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, बाद में क्यों नहीं। तो हम लोग जब धर्म चर्चा करते थे ग्वालियर में तो इसका एग्जाम्पल मैं देता था कि भाई तू मोटी है तो मैं सबके सामने बोलूं कि जरा ध्यान रख बहुत मोटी हो रही है, इसकी क्या जरूरत है, ये मैं तुझे डाउन करने के लिए कह रहा हूँ, मैं अलग से नहीं तेरे को अकेले में नहीं बोल सकता था। तो इस तरह से अपन देखें कि सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य के साथ जो हमारी कलुषताओं का एनवलप में रख के हम सत्य को पास ऑन करते हैं इसलिए वो कड़वा दिखता है। बहुत सुंदर बात है ये, और उसमें इसके अगर आप देखें तो मेरी चूंकि शब्दों से जरा ज्यादा दोस्ती रहती है तो मैं आपको इससे सत्य पर ले जाता हूँ। सत्य का क्या मतलब, सत्य कहाँ से आया, सत्य का क्या मतलब, सत्य का शाब्दिक अर्थ अगर आप देखें तो ये सत्य से आया है। सत्य का मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्ट करता है वो सत्य है। तो जो एग्जिस्ट करता है उसकी जो क्वालिटी है वो सत्य। असत का मतलब क्या होता है, असत का मतलब होता है जो नहीं है।
अगर हम किसी से कह दें कोई आदमी लंबा है, हम कहते हैं कि ये बहुत ठिंगना है, तो वो लंबा है नहीं, वो ठिंगना है नहीं, हमने कह दिया तो सत्य नहीं है, उसका ठिंगनापन सत्य नहीं है, तो असत्य है तो वो असत्य है, भाषण हमारा होगा। तो सत्य तो बाय डेफिनेशन कड़वा नहीं होगा। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका अभिप्राय क्या है, उसको कहने में, उसकी प्रस्तुति में, उसके लिए समय चुनने में आपका अभिप्राय क्या था। तो उसे हम, अगर हमारी आत्मदृष्टि होगी तो हम उसे समझ सकेंगे कि हमने किस समय, किन शब्दों में, किस मुद्रा में क्या बात कही। तो वो ये तय करेगी कि वो कड़वा हुआ कि मीठा हुआ। बहुत सुंदर। और एक बहुत ही अच्छा। विभा जी आप कह रहे हैं कुछ? नहीं, कह रही थी बहुत ही अच्छा डिस्कशन चल रहा है कि ये तो अभिप्राय की बात है। कोई भी सेंटेंस अपने आप में मीनिंग नहीं रखता। एक ही सेंटेंस है जो उसी सेंटेंस को आप अलग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं, सेम वर्ड्स को, सेम चीज को। तो कहने के अभिप्राय पे उस सेंटेंस का मीनिंग आप निकालते हैं। जैसी लेवल की कषाय मेरे पास है इस समय प्रस्तुत है, मैं उस सेंटेंस को उस सेंस में ले जाऊंगी। तो अपने आप में सेंटेंस नहीं है। और अंकल ने तो इतनी अच्छी बात बताई कि सत्य जो है और असत्य जो है नहीं, तो उसका तो वर्ड ही इतना मीनिंगफुल है। और बहुत ही अच्छा बताया कि गुण ग्रहण का भाव रहे जो। तो गुण ग्रहण का अगर मेरे में भाव है कि स्वाति जी से मुझे ये गुण ग्रहण करना है, इसका मतलब मैं अपने में ये जानती हूँ कि वो वाला गुण मेरे में नहीं है। तो मैंने अपने दोष को पहचाना, तभी मैं दूसरे को से गुण लेना चाहती हूँ। भगवान से मैं गुण इसलिए लेना चाहती हूँ कि मैंने अपने दोष को पहचान लिया। और मुझे लगता है किसी भी मार्ग पे चलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं अपने दोष को पहचानूं। अगर मैंने अपनी गलती को पहचाना तभी मैं उसे इम्प्रूव करना चाहूंगी। और यहाँ सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है कि हम अपने दोष को दोष नहीं मानते, दोष को दोष ही नहीं मानते, उसे कवर अप करते हैं किसी ना किसी चीज से। तो दोष को मानना सबसे इम्पोर्टेंट पहला स्टेप है। अगर हम अपने आत्मा अनुभव में चलना चाहते हैं, धर्म मार्ग पे चलना चाहते हैं, और जिसने अपने दोषों को मान लिया, उसे पहचान लिया, तो वो दिन दूर नहीं कि वो आगे बढ़ ही जाएगा। बहुत ही अच्छा आज का डिस्कशन। थैंक यू डॉक्टर विभा। स्वाति से तो मुझे भी गुण लेना है। स्वाति का तो कंफर्म में मोक्ष जाना, तो ये कैसे जा रही है, जरा इसके बारे में मुझे भी ये ग्रहण करना। बहुत अच्छा वाईके अंकल, सभी लोग बहुत अच्छा। नहीं, आई विल लाइक टू ऐड फ्यू पॉइंट्स। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, थैंक यू नीरज जी। मेरी सबसे बड़ी जो लर्निंग हुई, एक तो हुई सत्य हमेशा सत्य वो होता है, मीठा होता है। मतलब मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। और दूसरा पॉइंट नीरज जी ने बोला वाईके अंकल ने बोला, जब आचार्य होते हैं, जब उनके शिष्य दीक्षा लेते हैं, तो उनके ऐसी वो होती है, जो भी एनलाइटमेंट, जो भी बोलूंगा, आई एम नॉट फाइंडिंग द राइट वर्ड, कि वो विशुद्धि होती है, ये पूज्य हो जाते हैं। मैं अगर देखता हूँ हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी आज की तारीख में जैसे डेवलपमेंट हो रहा है और नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिनको हम नहीं जानते, और जो नए बच्चे मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स हायर करते हैं जो हमसे काफी यंग हैं, जो 28-30 की एज ग्रुप में, उसमें मास्टर होते हैं। अगर हम उनके साथ रिवर्स मेंटरिंग करें और उनकी रिस्पेक्ट करें इस बात की, इररिस्पेक्टिव ऑफ उनका टाइटल क्या है, अब उन गुणों को सीख सकते हैं। एक उसका बहुत अच्छा लगा ये कि हम लोग कई बार क्या सोचते हैं कि क्योंकि हम सीनियर हैं, हम सीनियर प्रोफाइल में एक्सपीरियंस है, ये हमें कैसे बता देंगे। तो ये मुझे इसकी बात बहुत अच्छी लगी। नीरज जी, थैंक्स अ लॉट। मैं तो अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए बहुत ही विनयशील रहता हूँ, क्योंकि मुझे उससे तमाम चीजें सीखनी होती हैं कि भैया ये देखो मैं यहाँ फंस गया, अब आके मेरी मदद करो। तो मैं तो बिल्कुल एकदम बहुत ही विनम्र छात्र की तरह से उसके सामने जाता हूँ। तो मुझे एक बात और याद आती है, ये तो आजकल सबकी सच्चाई है, बच्चों के मैं कमल अंकल ने शायद एक सेशन में बताया था, सबको ही विनयशील होना पड़ता है। कमल अंकल ये नहीं हो रहा। हाँ बोलिए। कमल अंकल ने शायद एक सेशन में बताया था
जब हम किसी के गुणों की तारीफ करते, मतलब किसी के गुणों की चर्चा करते हैं, अंकल आपने बताया था, मैंने कहीं पढ़ा था, वो अननोइंगली वो गुण आप में आ जाते हैं। अगर किसी का कोई गुण आप में आए तो आप उसको पब्लिकली अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर आप उसको बार बार अप्रिशिएट करेंगे पब्लिक में तो वो क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी। तो these are the few points I wanted to put. नहीं, यही नहीं होगा विपुल भैया, वो आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा। अगर आपको किसी को कि क्या वेमनस से दूर करना है तो उसका अप्रिसिएशन से बड़ा तरीका ही कुछ नहीं है। नहीं, स्वाति जी यहाँ पे दूसरी बात बोल रहा हूँ, मैं उसको ये नहीं बोल रहा मित्र बनाना है। अगर नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वो क्वालिटी तो आप में आ ही जाएगी, क्वालिटी आ जाएगी, लेकिन वो आपका एक और आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा कि वो आपका हितैषी भी बन जाएगा। उसके स्पिन ऑफ है, स्पिन ऑफ हो गया उसका। विपुल, इसमें एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम चाहते नहीं है किसी की बुराई करना, पर अगर बाई चांस निकल जाए तो क्या करें। तो उन्होंने बोला उसकी इक्विवेलेंट एक तारीफ करो। जिस फोरम पे तुमने उसकी बुराई करी है उसी फोरम पे करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसको मैंने देखा, इट पेज ए लॉट। अगर मैंने अकेले में उसकी तारीफ वो बुराई करी है तो अकेले में कर लूं, पब्लिकली की है तो पब्लिकली उसकी तारीफ कर, कम से कम एक तारीफ जरूर कर, तो वो आपने बहुत अच्छी बात बताई, हो जाएगा उसका। निकल आपने बहुत अच्छी बात बताई, आपका थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आपने बोला लोगों को रिसीवर कैसे कराने, वो मेंशन करना भूल गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप किसी का रिसीवर ऑन कराना चाहते हैं अपनी बात से, तो ऑलवेज स्टार्ट विद अ पॉजिटिव पॉइंट। ये एक्चुअली इसी पॉइंट पे बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चर्चा करना चाहती हूँ इसमें बिफोर वी क्लोज। बट विभा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, हाँ, नहीं, ओके। हाँ, नहीं, बोलिए विभा जी। नहीं, कुछ नहीं, आप पहले बोलिए फिर देखते हैं। हाँ, नहीं, मैं इस पॉइंट पे आ रही थी कि विनय संपन्नता हमें सबको पता है कि मतलब कितना मोक्ष मार्ग की तरफ पहला दूसरा कदम है, तो अनडाउटेडली इट इज। लेकिन मैंने ये देखा है कि ये ह्यूमिलिटी का ये संसार लाइक एक्सप्लॉइटेशन करता है एट टाइम्स। मतलब नॉट इन रियल सेंस, बट आप ह्यूमिलिटी रखते हो घर में तो कभी कोई आप पे, मतलब लोग बॉसिज्म कर सकते हैं, चाहे वो घर हो। आप बहुत ह्यूमिलिटी रख रहे हो तो लोगों को पता है कि ये तो मतलब वही वाली लास्ट टाइम वाली बात जो वाई के अंकल ने कही थी कि इससे कोई भय करना नहीं है, तो लोग आपको उल्टा सीधा कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक ये पॉइंट है। ऑफिस में आप ह्यूमिलिटी करके बिहेवियर कर रहे हो तो पीपल कैन टेक एडवांटेज, समटाइम्स योर बॉसेस, समटाइम्स योर क्लाइंट्स, समटाइम्स योर पीयर्स। तो ये देखा है कि जो विनय संपन्न होता है उस पे लोग इजीली बुरा बिहेवियर करते हैं। देन जिनके लिए उन्हें पता होता है कि ये बंदे से विल गिव बैक टू मी द बिहेवियर, तो वो उससे तो थोड़ा सा कम मिसबिहेव करते हैं। लेकिन जो विनय संपन्न होता है उससे मिसबिहेवियर लौकिक रूप में ज्यादा हो जाता है, चाहे रियल वे में उसका कभी हार्म नहीं होगा, लेकिन बाहरी तौर से हो जाता है जो थोड़ी बहुत मन की शांति को भंग कर सकता है। तो व्हाट इज द पर्सपेक्टिव देयर? मैं इसमें एक पर्सपेक्टिव दूंगी कि मैंने अपने पापा से डिस्कस किया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने वो एक मुनि महाराज की कहानी सुनाई कि कोई श्रावक आया कि आपने कहा था कि कोई पत्थर भी मारे तो कुछ मत करना। तो महाराज जी ने कहा मैंने डसने से मना किया था, मैंने फुंकारने से मना थोड़ी किया था। मतलब सांप था ये कि डसना मत, लेकिन फुंकार तो सकते हो। तो that was one answer that I got. I would just ask others in the group for more perspectives on that. पहली चीज तो ये कि विनयशीलता क्षमतानुसार होनी चाहिए। क्षमता अगर नहीं है तो फिर एक्टिंग करने से बात बनेगी नहीं, क्योंकि अंदर आपके संक्लेश बहुत होगा और कर्म बंद बहुत होगा। उतनी ही करो जितनी आपकी औकात है।
एक इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताऊं, दमोह में एक महिला थी व्रती, और उन्होंने ये नियम ले लिया कि मैं किसी से किसी की बुराई नहीं करूंगी। दुर्भाग्यवश उनकी जो पुत्र वधू थी वो बहुत कर्कशा आ गई। अब वो तो बिहेव करे और ये किसी से बोले न बेटे से न पति से, उनकी नस फट गई और वो देहावसान हो गया उनका। तो पॉइंट ये है कि जितनी क्षमता है उतनी ही विनय संपन्नता रखो अपने अंदर, उससे ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। क्षमा सागर महाराज ने तो एक आध दफे ये तक कहा कि तुम गृहस्थों के लिए एक बहुत छोटी लिमिट है, उस लिमिट तक करो। अगर फिर भी वो बदतमीजी करता है तो दूसरी तीसरी बार उससे ऐसा जवाब दे दो कि वो चौथी बार आए नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि तुम गृहस्थ हो। हम लोगों के लिए कहा गया है कि टिल फर्दर, टिल एंड आप बर्दाश्त करते चले जाओ, साधुओं के लिए, मुनियों के लिए। मेरे ख्याल में काफी टाइम हो गया। अंकल आप स्वाति जी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, मतलब इट विल हेल्प मी। स्वाति जी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। मैंने शायद पहले भी बोला, एक बुक है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, एक किताब है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, मार्शल रोजनबर्ग की है। उन्होंने गांधी जी की लाइफ लिखी थी। आपका ये आंसर उस किताब में दिया हुआ है। मैं इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा उस किताब को मंगा के पढ़ें। वो जैनिज्म की क्लोजेस्ट बुक मैंने आज तक नहीं देखी। जो हम बात कर रहे हैं कि कैसे एडमायर करना चाहिए, कैसे गुस्सा करना चाहिए, कैसे अपनी बात कहनी चाहिए, अगर आप बोलेंगे तो मैं कभी उसको एक सेशन आप लोगों के लिए ले सकता हूँ, क्योंकि वो बुक मैंने कई लोगों को उसके सेशंस लिए। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट में सत्य नाडेला जो थे, उन्होंने अपने सारे डीआर्स को सबसे पहले वही किताब पढ़ने को दी थी। Okay. Okay. Thank you so much, Vipul Bhai, for telling about this book. If you can also share on WhatsApp, maybe in the हाँ, मैं आप लोग को ग्रुप में डाल दूंगा। Janin group only about this book, the author name, then it would be great. हाँ, दोनों चीज डाल दूंगा। तो कोई और क्वेश्चन है, किसी का कोई पर्सपेक्टिव है? Any other thoughts? I know that we are already at 9:22. विभा जी, तब आप कुछ कह रहे थे? Now can you hear me? Yes, yes. नहीं, मेरे को ये लगता है कि विनय संपन्नता भावना जो है ये सम्यक के सन्मुख और सम्यक के बाद ही आ रही है। तो ये ऑटोमेटिक ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं हम लोग कह रहे हैं, ये तो अराइज ही नहीं होगी जब एक दफा स्वभाव के सन्मुख हो गया और उसको पता चल गया कि मैं कौन हूँ। तो ये जितनी बाकी की कषायें, ठीक है अभी 3 चौकड़ी का राग है, मैं उसको मना नहीं कर रही हूँ, परंतु वो वाली बात जो एक मिथ्या दृष्टि के आती है वो वाली प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो विनय संपन्नता तो बहुत ऊंची चीज है जो कि ऑटोमेटिक आती है। जब मैंने अपने स्वभाव को अनुभव कर लिया तो विनय तो ऑटोमेटिक आएगी, क्योंकि मैं आप में भी आत्मा देख रही हूँ जो मैंने में देखी। तो ये वाली जो कषाय का रूपक आ रहा है वो वाला कषाय का रूपक नहीं आएगा, जबकि 3 पीढ़ी का राग है, अभी ये बढ़ना है, अभी सब कुछ है। तो 0 तो मैं नहीं कह रही, बट हाँ उसमें फर्क आ जाए। तो ये सब तो हमारी अभी व्यवहार की बातें हैं। तो जहाँ विनय होगी, जहाँ स्वभाव का अनुभव होगा, वहां तो विनय का प्रश्न लानी नहीं पड़ेगी, विनय आएगी ऑटोमेटिक। विभाजी की बात में बहुत दम है, बहुत बल है, लेकिन एक बात मैं थोड़ा नुआंस करना चाहूंगा। सम्यक दर्शन होते ही स्वभाव का अनुभव हो जाना ऐसा नहीं होता है। स्वभाव के प्रति श्रद्धान हो जाता है। सम्यक दर्शन श्रद्धान की बात है, और अनुभव तो बहुत बाद में जाके होता है। श्रद्धान हो जाता है कि आत्मा का, हमारी शुद्ध आत्मा का स्वभाव क्या है, ये हम जान जाते हैं सम्यक दर्शन में। उस पर हमारा दृढ़ श्रद्धान हो जाता है और हमारी एक भावना हो जाती है कि उस स्वभाव को हम प्राप्त करें, लेकिन उस स्वभाव का अनुभव हमें नहीं हुआ। चतुर्थ गुण स्थान वो आगे की बात।
मैं एक चीज ऐड करूं क्या? प्रदीप जी बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। हाँ जी प्रदीप जी, हाँ जी। देखिए, आपने जो है कुछ समय से 2 बारी से मैं देख रहा हूँ विकास जी को बुला रहे, विकास छाबड़ा जी को, और उस व्यक्ति के प्रभुत्व को, वैभव को समझिए कि विनयशीलता उनके बॉडी लैंग्वेज से टपकती। तो चीजों को हमें कोई और सिखाए, ये ऐसा क्यों जरूरी है? हमारे यहाँ अपने यहाँ साधु इतने सारे हैं, तो हमें इन लोगों की लैंग्वेज समझ में नहीं आती कि विनयशीलता क्या है, हमें क्यों समझ में नहीं आ रही है? ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं कहना चाह रहा था। ठीक प्रदीप जी, थैंक यू फॉर योर पॉइंट। थोड़ा सा मेरे ख्याल से डिस्टरबेंस हो गया था, तो पूरी तरह से नहीं क्लियर हुआ, लेकिन बट थैंक यू फॉर पुटिंग द पॉइंट अक्रॉस। दोबारा बोलूं क्या? योगिंदर अंकल, कमल अंकल, आपका इफ यू कुड हियर प्रॉपर्ली, आपका कोई उसमें पर्सपेक्टिव है? मेरी समझ में आया कि शायद ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत उदाहरण हैं, हमारे साधुओं में ये गुण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो फिर हमें इसमें इतने ऊहापोह की क्या आवश्यकता है? हम देख सकते हैं, हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। मैं यही समझा। विद स्मॉल मॉडिफिकेशन कमल जी, विद स्मॉल मॉडिफिकेशन, कि जो विनय संपन्नता है ये आंतरिक गुण है, और ये आंतरिक गुण है तो ये मन वचन काय की एक रूपता से प्रकट होगा, और इसकी एक रूपता की प्रकट करने के लिए हमें कोई सीखने की जरूरत नहीं है। सीखने के लिए तो बजाय हम देखें कि विनयशील व्यक्ति कौन कौन से हैं, गुणों को एक्वायर करना है, प्रकट करना है, स्वभाव में लाना है। तो जैसे विकास छाबड़ा जी एक हमारे सामने बहुत लाइव एग्जाम्पल है कि उनके हर चीज में देखिए कि कितने प्रकार की विनयशीलता है। चाहे हम थ्योरेटिकली ज्ञान की कह लें, गुरु की कह लें, वो एक अलग इशू है, पर जो विनयशीलता है अगर प्रकट रूप से देखें गृहस्थ में, तो एक लाइव एग्जाम्पल है बड़े अच्छे विकास छाबड़ा जी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह से एग्री करते हैं। बस यही है कि वही ज्ञान प्राप्त करने के भी डिफरेंट सोर्सेज हैं। एक आप किसी को देख के प्राप्त करो, एक बुक पढ़ के प्राप्त करो, एक किसी गुरु के सानिध्य में प्राप्त करो। तो उसी प्रकार ये विनय में अलग अलग तरीके से, और किसी को किसी रूप में समझ आता है, किसी को किसी रूप में समझ आता है। तो आई थिंक दैट इज ऑल द एफर्ट्स दैट ऑल ऑफ अस आर डूइंग। समझ में आता है, किसी को कैसे समझ में आता है, दैट इज ओके। राइट, वही है। बट योर पॉइंट इज वेरी वेरी वैलिड, एंड थैंक यू फॉर रेजिंग दैट, एंड अप्रिशिएट द पर्सपेक्टिव कि एक ये भी है कि हम अपने गुरुओं को और सबको देखें, और विकास जी स्पेशली, मतलब जो एक प्रोफेशनल ही रह चुके हैं पहले, तो ही इज अ लाइव एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस। तो आई थिंक वी आर ऑलरेडी एट 9:30, so we would just end the session. Thanking Neeraj Bhaiya. Neeraj Bhaiya, amazing session. You just took 30-35 minutes, but great discussion on the topic, on this simple topic, and for that, thanks a lot to Kamal uncle and YK uncle, as always. थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। आप जब तक ज्वाइन नहीं करते तब तक हम सोचते हैं अभी तक आए नहीं आप लोग सेशन। नहीं, मैं तो 1 मिनट पहले आ गया था, लेकिन फिर मेरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। एडिशनल जब भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो नातनी को बुला लिया कर, वही उसी को सॉल्व ढूंढने कर में देगी थोड़ा समय लग गया। प्रॉब्लम। फाइन, एनीवेज थैंक यू एवरीवन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।